Assalamu alaikum and welcome to the first lesson of this course. Today, we'll try to understand what data analysis is and why is it so important. खास तौर पे आजकल तो data analysis is everywhere. Let's begin with the definition of data analysis, which says that it is the process of systematically examining data to extract useful information, draw conclusions, and support decision making. Although, like all other definitions, this one too is loaded with terms, but we'll try to make it simple by just picking up the most important words from it. The first term that I want all of you to pay close attention to is systematically, because this signifies that the process of data analysis is not just random shuffling through the data to just get a piece of information. Rather, by being systematic, it means that it is to be conducted in a principled manner under the guidance of a set protocol. We are going to see in a while what that protocol is. And then it is useful information. Now, we know that from the beginning that data is what we know as raw facts, which is termed as data. And when we process them, it becomes information. But it is also important to note that not every piece of information, or in other words, हर तरह की जो data processing है, which results in some kind of information, not every piece of it is suitable for all kinds of analysis. Rather, it is the objective or the problem that you're trying to solve, which identifies which information is useful and relevant. Because then that information should help you making conclusive outcomes from the process and support you in the decision making. And with decision making, it's such an important activity in context of data analysis and otherwise also. For data analysis, it is actually the reason why anyone would initiate this process. क्योंकि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई अपॉर्चुनिटी है, उस पर आपने प्रोग्रेस करनी है, there are many options available to you and you have to select one of them. You need to take a decision, and for that you need to have the relevant information with you. Okay. Other than data analysis, decision making is such an important and the most frequently carried out activity by humans also. हम हर वक्त में decision making कर रहे हैं. Rather, अगर हम ये कहें कि इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद ही एक्चुअली डिसीजन मेकिंग एट एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, जब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस आ रही है सामने, दे हैव टू पिक द बेस्ट choice, make the best decision which takes them closer to their goal, their objective. तो यही मकसद है इंसान की हमारे दुनिया में आने का. तो जो decision making is such an important activity and it should be backed by the relevant information. Okay, just like any other process, we have a series of steps which are to be conducted in the order given. And the idea is to basically, why we do that, all of those steps is to transform the data, which is raw facts, into meaningful insights. Something which helps us make decisions which actually drive us closer towards the objective, to the goal that we're seeking. And this process begins with the collection and preparation of data. Of course, data is needed. It will be collected if it's not already there. And for collection, you can have automated mechanisms such as a video recording area. It's also a form of data collection and it's being done automatically. टूल्स के थ्रू, और मैनुअल भी हो सकती है. जैसे एग्जांपल क्या है कि आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं एंड the respondents are giving some responses and you're noting them down. ठीक है. या फिर अल्टरनेटिवली आपने लोगों को बाज़ औक़ात, rather most of the times, वो जो सर्वेस हैं, they are handed out to the respondents for self administration and they fill it out by themselves. Irrespective of whichever of these more manual या automated आप इस्तेमाल करते हैं, there are chances of errors in your data. मैनुअल के केस में तो बड़े ऑब्वियस एरर्स हो सकते हैं, लोगों ने मिस आउट कर दी कोई इन्फॉर्मेशन फिल करने से, या फिर गलत कर दी, डुप्लीकेट कर दी, फॉर्मेट के एरर्स कर दिए, स्पेलिंग्स मिस्टेक कर दिए, यूनिट्स के एरर्स कर दिए. ठीक है.
तो ये इस किस्म की चीजें, या और जो ऑटोमेटेड है उसके अंदर भी आपकी इंस्ट्रूमेंट के एरर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के एरर्स, डेटा ट्रांसफर के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर के दौरान एरर्स, ये सब आ सकते हैं। एज एन एग्जांपल, अगर इस वक्त इंटरनेट डिस्ट्रप्ट होता है तो वीडियो अनअवेलेबल हो जाएगी, रिकॉर्डिंग के अंदर आपके पास ये इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा मिसिंग हो जाएगा या वॉइस ब्रेक हो जाएगी। तो इनको क्लीन करना होता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आफ्टर डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। बाय द वे, प्रिपरेशन से मतलब ये है कि आप उस डेटा को कलेक्ट तो हो गया, तो आपने पेपर से लिया या वीडियो रिकॉर्ड की या ऑडियो रिकॉर्ड की या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट हुआ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। नाउ यू नीड टू ब्रिंग, एक तो उसको आपने कंसोलिडेट करना है, यू ब्रिंग नीड टू ब्रिंग इट इनटू अ फॉर्मेट व्हिच इज सूटेबल फॉर द सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस। क्योंकि जितनी भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं उसके बाद के जितने फेजेस हैं वो नॉर्मली टूल्स के थ्रू होंगे, ऑटोमेटिक होंगे, कंप्यूटर्स के थ्रू होंगे। तो आपने डेटा को ऐसे फॉर्मेट में लेना है जैसे कि आप एक्सेल शीट्स बना लें या सीएसवी फाइल्स बना लें, सो ऑन। अच्छा, क्लीनिंग इसके बाद आ गई। क्लीनिंग के लिए भी अवेलेबल है, मिसिंग वैल्यूज है तो उसको आपने फिल कर दिया, उसके भी मेथड्स अवेलेबल हैं। आपने एरर्स करेक्ट कर दी, कोई रिप्रेजेंटेशन के एरर्स थे, कोई डुप्लीकेशंस थी, उनको निकाल दिया, एंड सो ऑन। तो क्लीनिंग के बाद फिर आता है प्रिलिमिनरी एनालिसिस, बेसिकली जिसको हम ईडीए या फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं या सिंपल एक्सप्लोरेशन कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यू ट्राई टू लुक इनसाइड द डेटा एंड सी व्हाट्स देयर। ये क्यों करते हैं? सो दैट यू अंडरस्टैंड योर डेटा बेटर, so that you identify if there are further any transformations which need to be done before you can actually feed your data to the analysis phase itself. Or yes, most importantly, it actually lets you um, decide which of the which kind of analysis you're actually going to perform. ठीक है, objectives तो आपने set कर लिए थे पहले, उनको अचीव करने के लिए नाउ यू ऑल्सो नीड टू, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू यूज द एनालिसिस प्रोसीजर्स जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन हर डेटा पे हर टाइप का एनालिसिस नहीं लगेगा। तो एक्सप्लोरेशन आपको ये भी बता देगी, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट योर डेटा इज, तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन से वाला टाइप एनालिसिस या कौन से मेथड्स, कौन सा मॉडल्स आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस दौरान आप विजुअलाइजेशंस भी करेंगे, और बल्कि बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन हेल्पफुल होती है ईडीए के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं। बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ्स से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जैसे कि बार चार्ट्स हम हमेशा से यूज करते हैं, पाई चार्ट्स वी बीन यूजिंग सिंस द बिगिनिंग, दूसरी क्लास से शायद हमने शुरू कर दिया। लेकिन उसके अलावा बेतहाशा और ग्राफ्स की टाइप्स अवेलेबल हैं, और अब तो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के विजुअलाइजेशंस भी अवेलेबल हैं जो काफी डेंसली इंफॉर्मेशन को पैक करती है, और आप एक छोटी सी ग्राफिक्स के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अगर आपकी ईडीए के दौरान आपको पता चलता है कि हमें डेटा के अंदर स्केल्स की डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल स्केल का डिफरेंस क्या हो सकता है कि अगर आपने लोगों से इंफॉर्मेशन ली थी उनकी एज के बारे में, और साथ में आपने उनसे ये भी पूछा था कि जिन घरों में वो रह रहे हैं उनकी प्राइस रेंज क्या है, तो क्लियरली देयर इज गोइंग टू बी a huge difference in the range of values. एज आपकी एट द मोस्ट 100 तक जाएगी या उससे थोड़ा ऊपर, लेकिन जो हाउस की प्राइस है वो तो स्टार्ट ही बहुत हाई वैल्यू से होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्केल्स ऑफ दीज वैल्यूज। इसका मसला कहाँ पे आ सकता है? जब आप एनालिसिस परफॉर्म करें, ठीक है, और दो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस या इवन मशीन लर्निंग के थ्रू आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो मॉडल्स कैन स्ट्रगल इफ देयर आर differences in the scales of values. So it is advisable to normalize your data and bring them to comparable scales. ठीक है, एक जैसे स्केल्स पे ले आए। तो हम क्या करते हैं, जैसे एज को भी आप नॉर्मलाइज करके यू विल ब्रिंग इट टू द स्केल, ऑल द वैल्यूज विल बी मैप्ड टू अरेंज फ्रॉम 0 to 1, एंड सेम विल बी डन फॉर द हाउस प्राइसेस। ठीक है, वो सब के सब उसी रेंज के ऊपर मैप हो जाएंगे, और वो फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके आप उनको वापस भी मैप कर सकते हैं। ठीक है जी, स्केलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है अगर आपके पास नॉन न्यूमेरिक डेटा है, जो कि होगा आपके कलेक्शन के अंदर। ठीक है ना, आपने लोगों से डेमोग्राफिक्स भी लिए हैं, तो इट इज गोइंग टू इंक्लूड न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज, जैसे उनके नाम है, उनकी क्वालिफिकेशन है, उनकी डेजिग्नेशंस हैं, उनकी एड्रेसेस हैं, रीजन्स जिसे वो बिलोंग कर रहे हैं वो है। ये सब नॉन न्यूमेरिक डेटा है। और न्यूमेरिक की तो एग्जांपल्स है, एज हो गया, नंबर ऑफ सिबलिंग्स हो गए, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हो गए, एंड सो ऑन। तो मॉडल्स के लिए
usually it is required that all of the non-numeric data is also converted into numeric values. और वो कैसे किया जाता है? numeric encoding के थ्रू, जिसके methods defined है और वो हम in due time देखेंगे भी. तो numeric encodings and scalings ये बड़ी पॉपुलर और टिपिकल किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि हमें करनी पड़ती है बिफोर वी कैन एक्चुअली फीड द डेटा टू द एनालिसिस फेज. फिर आ जाता है फाइनल एनालिसिस, जिसके ऊपर आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के जो डिफाइंड मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं और वो आप आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं ऑलरेडी अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान. एंड फाइनली जो भी मॉडल्स की आउटपुट्स आती हैं जो कि न्यूमेरिक चीजें होंगी, उनके बेसिस के ऊपर वी हैव टू इंटरप्रेट दोज वैल्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. ठीक है, जिस जिस इनिशियल ऑब्जेक्टिव के साथ आपने स्टार्ट किया था एनालिसिस, उसके ऊपर आपने उस डोमेन के ऊपर अपनी मॉडल की आउटकम्स को इंटरप्रेट करना है, मैप करना है. फिर रिपोर्टिंग आ जाती है. रिपोर्टिंग इसलिए कि जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उनको आप डिसेमिनेट कर दें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस चैनल के ऊपर उसको करना है. उसके डिफरेंट तरीकेकार हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर भी हो सकता है, या वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट थी आपके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन थी, उसके मुताबिक आप इसको रिपोर्ट कर देंगे. और सबसे फाइनली जो हमने एक्शन करना है वो ये है कि विल टेक ए डिसीजन रिगार्डिंग दैट. ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारे प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. और एग्जांपल वी हैव चोजन एन एग्जांपल which all of the students can relate to. So suppose if you want to find out why your grades fell in the last semester, या फिर why you could get very good grades against your expectations, दोनों सूरतों में, तो इस किस्म का कुछ एनालिसिस प्रोसीजर चलेगा. You need to collect data and prepare it. ठीक है, अब रेलेवेंट डेटा की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? जाहिर है कि ये तो कुछ डेटा आपके पास, वो वक्त तो गुजर गया, लास्ट सेमेस्टर की बात करें तो कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, आप उन रिकॉर्ड्स में से उनको निकालेंगे. कुछ अगर आपकी मेमोरी में है तो उसको आप नोट डाउन करेंगे. कुछ रिकॉर्ड्स कहीं और अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स के पास असेसमेंट्स वगैरह के, तो वो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं. कलेक्शन में जैसे कि अटेंडेंस रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, स्टडी आवर्स पर सब्जेक्ट जो आपके अपने पास की इंफॉर्मेशन मौजूद है, अगर नोटेड है ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं है तो आप अपनी उसको एटलीस्ट वो इंफॉर्मेशन अब रिकॉर्ड जरूर करेंगे. ठीक है, गुजरे हुए वक्त की इंफॉर्मेशन ही है, बट इफ यू हैव इट इन योर मेमोरी तो आप उसको रिकॉर्ड जरूर करेंगे. फिर असाइनमेंट्स में स्कोर्स क्या आए, एग्जाम के परफॉर्मेंसेस क्या आए, स्लीप पैटर्न्स क्या रहे, सोशल एक्टिविटीज, हेल्थ फैक्टर्स वगैरह, ये सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर ली, इनकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले आए. प्रिपरेशन में क्या होगा, अब इस सारी इंफॉर्मेशन को आप ऐसे फॉर्मेट के अंदर ऑर्गेनाइज करें, स्ट्रक्चर करें विच इज फ्रेंडली फॉर दी सबसीक्वेंट प्रोसेसेस, जिसके ऊपर आपने अब कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसेस लगाने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको ले आए और ऐसे फॉर्मेट में जो आपके आने वाली प्रोसेसेस की जो टूल्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को, उनके इस्तेमाल के लिए रेडी हो. ठीक है, तो जैसे सब हमने स्प्रेडशीट्स बना ली, उन स्प्रेडशीट्स के अंदर हमने कॉलम्स और आइडेंटिफाई कर लिए, रोज को आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ फर्दर और कैटेगराइजेशन कर ली है, वो हमने सारी चीजें बीच में एंटर कर दी. फिर आगे डेटा क्लीनिंग. अब डेटा क्लीनिंग कैसे हो सकता है कि आपके पास अगर लॉग्स थी, आपके कितना स्टडी आवर्स कितने थे, या आपने कितना टाइम सोशलाइजिंग में लगाया, कितना टाइम आपने मोबाइल के ऊपर जाया किया, और वो कुछ दिनों का मिसिंग है, या अगर हफ्ता वाइज आपने वीकली किया है तो उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, तो उनको आप जितना भी आप अच्छे तरीके से फिल इन कर सकते हैं उसको करते हैं. इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्यूटेशन. ठीक है, आपकी मिसिंग वैल्यूज के लिए आप वैल्यूज प्रोवाइड करें और उसके भी मेथड्स अवेलेबल हैं. तो आपने उन ग्रेड्स, अगर ग्रेड्स की इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो डाल दी. अगर इफ इट इज नॉट अवेलेबल, और तो फिर आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू फिल इट इन विद सम वैल्यू जिसके मेथड्स अवेलेबल है. ठीक है, फिर आपके पास आ गया फाइनली, यानी कि आफ्टर फिलिंग दीज गैप्स वेयर एवर इट इज पॉसिबल, फिर आपके पास एज एन एग्जांपल, अब इसमें क्लीनिंग के बहुत सारे और सिनेरियोज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ टिपिकल सिनेरियोज जब हम यहाँ पे डिस्कस करें, then you also ensure that the data is consistent, जैसे कि converting hours studied into a common format. कहीं पे आपने उसको घंटों में रिकॉर्ड किया था, कहीं मिनट्स में किया था, कहीं पे खाली सेकंड्स का टाइम लगाया था, तो आप उनको कॉमन यूनिट्स में, कॉमन फॉर्मेट्स में ले आए. डेट्स अगर डिफरेंट लिखी हुई है, कहीं पे मंथ पहले लिखा है और डे बाद में लिखा है, और
वाइस वर्सा, तो उनको आप एक कॉमन फॉर्मेट के अंदर ले आए। इस किस्म की क्लीनिंग लगाने के बाद हम आएंगे ईडीए के ऊपर, बेसिक एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के ऊपर, जिसमें क्या हो सकता है कि आप डेटा की समरीज निकालें, जिससे आप हर जो न्यूमेरिक कॉलम्स है उनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज क्या रही, कितने आपने एक, अगर आपने डेली रिकॉर्ड अपना लॉग रखी हुई है स्टडी आवर्स की, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू हो गई, मिनिमम कितना था। ठीक है, मोबाइल के ऊपर आपने जितना टाइम लगाया उसका अगर लॉग मेंटेन है तो मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया, एवरेज कितना गया, इस किस्म की वैल्यूज। या मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपने सोशलाइजिंग जो सोशल एक्टिविटीज थी वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी टाइप की आपने की। ठीक है, ये वाली चीजें आएंगी। फिर विजुअलाइजेशंस, यही सारी जो समरीज है उनको विजुअलाइज भी किया जा सकता है, चार्ट्स व्हिच एक्सप्लेन टाइम स्पेंड ऑन स्टडिंग ए सब्जेक्ट एंड इट्स ग्रेड एंड एक्सेट्रा, इस किस्म की विजुअलाइजेशन आ गई। उसके दौरान ये विजुअलाइजेशन करते हुए और बेसिक एनालिसिस करते हुए आपको कुछ अनोमलीज भी नजर आ सकती हैं, सच एज देयर वर सब्जेक्ट्स, देयर वर कोर्सेज in which you spent lesser time studying them but you got a good grade। ठीक है, तो वो चीजें भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड थी, जैसे कि अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग और हमने जिक्र कर लिया था न्यूमेरिक एन्कोडिंग का, लेकिन उसके अलावा एक और किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकती है कि आप नए डेटा एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई जो एवरेज आवर्स, स्टडी आवर्स पर वीक, ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, ओरिजिनली डेटा में मौजूद नहीं था, बट यू क्रिएट अ न्यू फील्ड फॉर इट और उसके ऊपर आप जो वीकली एवरेज थी वो लिख लें। ठीक है, या फिर डिफाइन योर ओन मेट्रिक फॉर समथिंग और वो आप उसके अंदर ऐड कर दें। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रिक्वायर्ड है कि यू क्रिएट न्यू फील्ड्स, डेटा के अंदर से डेटा को एग्रीगेट करके, मर्ज करके, ज्वाइन करके यू क्रिएट ए न्यू फील्ड जो आप एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें वो हमने बात कर ली कैटेगराइजेशन और न्यूमेरिक एन्कोडिंग। जैसे कि आपके कोर्सेज तो आपने नाम तो लिखे हुए थे, ठीक है, बट यू क्रिएटेड ए न्यू फील्ड जो कोर्स का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बता रहा था। अब वो आपने, इट वाजंट देयर इन द ओरिजिनल डेटा रिकॉर्डेड बट यू क्रिएट दैट बेस्ड ऑन योर ओन जजमेंट कि ये वाला कोर्स जो है मुझे आसान लगा, आसान था मेरे लिए, ये मुश्किल था, तो ये कैटेगराइजेशन भी आपने की और फिर उसको आपने न्यूमेरिक एनकोड भी कर लिया। आपने कहा whichever courses which I considered hard, I'm going to give it value 1, and whichever course I found easy, तो I'm going to give it a 0। क्यों करेंगे न्यूमेरिक एनकोडिंग? क्योंकि एनालिसिस के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि आपके जो फील्ड्स हैं, जो डेटा वैल्यूज हैं, दे आर इन न्यूमेरिक फॉर्मेट। फिर फाइनल एनालिसिस आएगा, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स एट दिस मोमेंट वी डू नॉट नो कि किस किस्म का एनालिसिस लग सकता है, वही तो हमने स्टडी करना है इस कोर्स में। सो विच एवर methods are appropriate for this kind of data and for the objective that you are conducting this data analysis for, आप वो methods apply कर देंगे and you will get some outcomes from those models, उनको आप interpret करेंगे एंड देन यू रिपोर्ट योर फाइंडिंग। अब आपके केस में बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ, तो ये हो सकता है कि वो आपने अपने रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड रख लिया कि आगे मुझे क्या करना है, या किसी मेंटर से डिस्कस कर लिया कि वो आपको गाइड कर दे कि जी आपकी फाइंडिंग आई है, एंड देन यू मेक डिसीजन। जैसे कि what interventions should I take to improve my grades in the next semester, कौन सी गलतियां मुझे अवॉइड करनी चाहिए, कौन से काम मुझे ज्यादा करने चाहिए। ठीक है, जो आपने फाइंड आउट किया कि अच्छा इस ये जो चीज, ये वाला जो एक्टिविटी थी, एक्चुअली इट एक्चुअली हेल्प्ड मी इन गेटिंग अ गुड ग्रेड इन अ सर्टेन कोर्स, और इसकी वजह से मेरा अगर किसी कोर्स में ग्रेड खराब गया है तो अच्छा दीज वर द कॉजेस, तो उनको मुझे अवॉइड करना है। ठीक है, नाउ वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस इज, अब हम आ जाते हैं कि अच्छा just for the sake of completion, although I'm sure everybody now understands why is it important, what's the significance of it, लेकिन for the sake of completion we are going to list some important things regarding the significance of data analysis, which is सबसे पहले तो informed decision making है। आप ना random decision नहीं ले रहे कि अच्छा क्या हुआ था, क्यों मेरा कोर्स ग्रेड खराब गया था, तो मैं ऐसे लेन किस्म की explanations नहीं दे रही। Now I have all the relevant information with me and I know exactly why, what went wrong and what is something that I need to avoid to face the same situation in the next semester। ठीक है, so informed decision making provides insights that help organizations or individuals make data driven decisions and develop effective strategies कि आप losses को avoid कर लें और अपने gains को बढ़ा लें। ठीक है, understanding trends and patterns। ठीक है जी, अब आपको
नॉर्मल बिजनेसेस ज़ाहिर है कि हम डेटा एनालिसिस, आप छोटी छोटी हर वक्त हम ये सारा प्रोसेस कंडक्ट नहीं कर रहे होते अपने सिंपल कि अच्छा जी आज मुझे अगर बाहर जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली कंडक्ट ए कंप्लीट डेटा एनालिसिस प्रोसेस टू फाइनलाइज कि मुझे किधर जाना चाहिए खाना खाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप जो एक्चुअल एक्टिविटीज जब परफॉर्म करें बिजनेसेस, ये काम या ऐसी एक्टिविटीज जिनकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पर डेटा एनालिसिस विल बी कंडक्टेड एज फॉर्मली एज पॉसिबल, ठीक है, सारे स्टेप्स को फॉलो करके, सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को नजर में रख के। तो वहां पर अगर ये डेटा एनालिसिस कंडक्ट हो रहा है तो इट एक्चुअली, बिफोर समथिंग एक्चुअली गोज रॉन्ग, if you are analyzing your data in real time, yeah, very frequently at regular intervals, so it lets you identify things which are going out of control, ठीक है, वो ट्रेंड्स पता चल जाएंगे, पैटर्न्स पता चल जाएंगे, एंड यू कैन प्रोडिक्ट कि अच्छा अभी कुछ चीजें खराब होने लगी, यानी कि हमारी सेल्स, इफ यू सी ए ड्रॉप इन योर सेल्स, तो उधर इससे पहले कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए या बिजनेस को ठीक ठाक लॉस हो, आपको, आपने रेक्टिफाई कर लिया कि देर इज अ ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो नाउ you can do interventions and see how you can deal with the situation. फिर आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्प्स इन डायग्नोजिंग प्रॉब्लम्स बाय एनालाइजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड द रूट कॉजेज एंड डेवलप सॉल्यूशन। जैसे अभी भी हमने देख लिया, अगर आप देख सकते हैं अपनी रूटीन की एक्टिविटीज में भी कि अच्छा थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट द वे यू वांटेड देम टू, तो आप बिफोर हैंड, इससे पहले कि कोई बड़ा डिजास्टर हो, आप पहले से मसले को हल कर, आप फाइंड आउट द कॉज एंड देन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर आ गया रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब ये भी बिजनेसेस के अंदर आपके पास डेटा मौजूद है, आप डेटा एनालिसिस करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे रिसोर्सेज जो है या खाली पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो तब भी लॉस है, या फिर ये कि काम ज्यादा है और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो तब भी लॉस है आपका। सो यू कैन फाइंड आउट द कॉजेज एंड फाइंड वेज हाउ यू कैन improve the utilization of resources, in other words optimize the utility of the resources. Risk management, which helps in identifying and mitigating risks by analyzing potential threats and impact, ये सब कुछ डेटा एनालिसिस के साथ पॉसिबल है कि आपको ट्रेंड्स, ये इसके साथ भी रिलेटेड है कि इफ यू आइडेंटिफाई कि थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांटेड देम टू, तो देयर आर थ्रेट्स ना, यानी कि रिस्क्स हैं कि ऑफ फेलियर, ऑफ कंप्लीट फेलियर, तो इससे पहले कि वो आपके रियलाइज हो जाए रिस्क, आप पहले ही यू कैन मिटिगेट दोज रिस्क, आप उसको मैनेज कर ले, फाइंड आउट द कॉजेज, फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड दोज रिस्क, हाउ यू कैन इम्प्रूव द सिचुएशन, ठीक है। या उनका अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो उनका इम्पैक्ट है थ्रेट्स का, उसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। फिर ये कि विद ऑल दिस आपका पास डेटा अगर मौजूद है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है ना। एक तो ये ना प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रॉब्लम आया था और आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो वो तो आपने करना था, मजबूरी है, मसला उसको हल तो करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपने, यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज, थिंग्स व्हिच वर नॉट थॉट ऑफ बिफोर, वो आपको डेटा से नजर आ जाए कि अच्छा देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू विद दिस सिचुएशन, देयर समथिंग व्हिच आई कैन मेक गुड आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है जो आपके पास, जो भी फील्ड में आप काम करें वहां पे, अगर आपके पास रेलेवेंट डेटा मौजूद है और गुड क्वालिटी का डेटा मौजूद है, तो वहां से आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको कैपिटलाइज किया जा सकता है।